Assalamualaikum. How are you, class 7th? I'm your as a science teacher. Now we are going to start a new chapter. At first, I introduce myself. My name is Iram Zulfikar. Yes, this is your science book. The cover page of your science book is that. This is your science book. In the last introduction, your cover page is different because uh, वो जरा ओल्ड सीरीज थी, ये न्यू हमने न्यू सीरीज जो है वो आई है, तो आपको हमने ये न्यू सीरीज इंट्रोड्यूस करवाई है. दिस इज योर साइंस बुक क्लास 7. See it carefully. This is your science book. This is the cover page of your science book. Yes. Syllabus of midterm exams. Your science book divided into 3 portions: biology, chemistry and physics. In previous lecture मैंने आपको बताया था कि साइंस की definition, what is science and what is science is divided into 3 main branches: biology, chemistry and physics. So the first is biology, chemistry and physics portion. In biology portion, unit 1, human organ system, and unit 2, transport of nutrients. In chemistry portion, unit 5, structure of an atom, and unit 6, water. In physics portion, unit 9, electric current in circuit, and unit 10, dispersion of light. Total 6 chapters are included midterm exams. Now, at first, we are going to start chapter number 1, read page number 1. I talk about in previous lecture. Recall about previous lecture. So, what is science and what is scientific method? I was discussed what is science and scientific method and the branches of biology and the branches of science, biology, chemistry, and physics. So now you write definition of biology, definition of chemistry, and write down the definition of physics. You learn it and write it. Starting of now start read chapter number 1. Your chapter number 1 is human organ system. Chapter number 1, human organ system. Today objective is that at the end of this session, a student will be able to describe or the definition of digestion and it's important, and describe the various components of human digestive system. At the end of this session, describe digestion and it's important, and describe various components of human digestive system. Now read chapter number 1. All living things need energy to perform their activities. What do you think from where living organisms get this energy? They eat food to get the energy. Humans eat a variety of food, but how do humans get energy from food? The food they eat contain complex organic molecules such as carbohydrate, proteins, starch, vitamins, and minerals. The human body cannot get energy directly from these molecules, so they need to be simplified. This is done by a process called digestion. Digestion is the process in normal way. Digestion is the process in which the complex food material converted into a simple form. Complex food material. For example, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, रोटी, सालन, चावल, जो कुछ भी खाते हैं, these are the complex food material converted into a simple form or simple things. अच्छा जी, हम जो खाना हमें all living things need energy to perform their activities. तमाम living things को क्या चाहिए होती है? अपनी एक्टिविटीज का परफॉर्म, एक्टिविटीज में क्या चीज आ जाती है? उनका चलना, मूवमेंट, ईटिंग, उनका चलना फिरना, रेस्पिरेशन, सारे प्रोसेस, मूवमेंट, मूवमेंट सबसे बढ़कर मूवमेंट, आपका चलना फिरना, आपका बातें करना, आपका जो है वो खेलना कूदना, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज में आ जाती हैं. और ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है. और हम एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? वो एनर्जी हम फूड के जरिए हासिल करते हैं, अपनी फूड के जरिए, ग़िज़ा के जरिए हासिल करते हैं. बट वो ग़िज़ा आएगी कहाँ से? वो फूड हमें मिलेगा कहाँ से? तो ये फूड जो होता है, जो हम खा रहे होते हैं, क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट, अब हम कार्बोहाइड्रेट कैसे खा रहे हैं भी, कैसे पता चले? तो कार्बोहाइड्रेट में हम क्या चीज ले रहे हैं? हम ले रहे हैं पोटैटो ले रहे हैं, हम ले रहे हैं राइस ले रहे हैं। प्रोटीन्स में हम क्या ले रहे होते हैं? मीट, ग्रेन्स। स्टार्च में हम क्या ले रहे होते हैं आपके? हाँ, राइस स्टार्च में आ जाता है। वाइटामिन किस में चीज में आ रहा होता है? वाइटामिन हम ले रहे होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सूरत में। तो हम एक्चुअल हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं रोटी, चावल, चीनी, दालें, गोश्त, उसके अलावा फल फ्रूट, जितनी भी चीजें हम ले रहे हैं ये सारी चीजें किस चीज में आ जाती हैं? सॉल्ट में। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? ये सारी चीजें एक्चुअल हम इन चीजों की जगह हम क्या ले रहे हैं? ये चीजें क्या हैं एक्चुअल? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, स्टार्च, विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमारी पूरी बॉडी को ये तमाम चीजें जो हैं वो इस फॉर्म में नहीं चाहिए, बल्कि किस फॉर्म में चाहिए? हमें एनर्जी हासिल करने के लिए सिंपल फॉर्म में चाहिए। और इसको कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने के लिए सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? डाइजेशन। फ्रॉम वेयर डू ह्यूमंस ऑब्टेन फूड? कहाँ से हासिल करते हैं ह्यूमंस जो है ना? ऑल्सो नेम सम सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो फ्रॉम वेयर डू ह्यूमंस ऑब्टेन फूड, ऑल्सो नेम सम सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी। आप जो है वो क्या करेंगे? या इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखेंगे। दिस इज योर होमवर्क। फ्रॉम वेयर डू ह्यूमंस ऑब्टेन फूड, ऑल्सो नेम सम सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। ये बात आपको अब अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। अच्छा, रीड एंड शेयर। Allah says, and eat of what Allah has provided for you, which is lawful and good, and fear Allah in whom you are believers. अच्छा जी, आपके हर चैप्टर के अंदर क्योंकि हमें पता है कि इस्लाम और साइंस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपके हर चैप्टर के अंदर कुरान पाक की कुछ आयत दी गई हैं। सूरह अल माइदा आयत नंबर 88, ठीक है? सूरह अल माइदा आयत 88। आपके कलाम पाक की हर पेज, हर चैप्टर के अंदर एक सूरत जो है वो आपसे शेयर की गई है। You learn, write, read, learn and write in a separate copy of each chapter of this surah. Allah says, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah says, and eat of what Allah has provided for you. और आपको अल्लाह ताला जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो दे रहा है, which is lawful and good, and fear Allah in whom you are believers. हमारा सबका किस पर है? अल्लाह ताला के ऊपर अकीदा है, अल्लाह ताला के ऊपर हम सबका पूरा भरोसा है, अकीदा है, जिसकी वजह से हमें क्या है? बहुत अच्छी और हमारे हिसाब से हमें क्या मिल रही है? ग़िज़ाएं मिल रही हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल फॉर्म। कीवर्ड्स अगर हम बात करें आज के, तो कीवर्ड्स में क्या आ जाता है? डाइजेशन, बुलस, पेरिस्टल्सिस, काइम, एंजाइम्स, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, डिसऑर्डर। डाइजेशन के प्रोसेस के कीवर्ड्स अगर मैं बात करूं तो डाइजेशन, बोलस, पेरिस्टल्सिस, काइम एंड एंजाइम्स, यहाँ तक ये सब जो है वो आप डाइजेशन के प्रोसेस में पढ़ेंगे। डाइजेशन मैंने भी बता दिया, डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल फॉर्म। बोलस, जो हम चीज जो हम मुंह में नवाला डालते हैं, जब वो पूरा बन जाता है तो वो जस्ट लाइक अ बोलस। अभी आगे मैं जब डाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी तो मैं बताऊंगी पेरिस्टल्सिस इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू अ ऑर्गन। काइम, पेस्ट लाइक फूड। एंजाइम्स इट इज अ secretion of glands, juices। और उसके बाद ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, ये सब हम आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। रीड एंड शेयर मैं आपसे कर चुकी हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज, and eat of what Allah has provided for you, which is lawful and good, and fear Allah in whom you are believers. Understand? The first page number 2, digestion.
The process by which complex molecules of food are broken down into simpler ones and are used by the body for energy, growth, and cell repairs is called digestion. The process of digestion starts with food intake. It involves the following steps. मैंने प्रोसेस बताया डाइजेशन का क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, बहुत छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं और वो हमारी बॉडी की एनर्जी, हमें क्या प्रोवाइड, बॉडी को क्या जो यूज करता है, बॉडी के अंदर क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ होती है, सेल की जो है वो रिपेयरिंग होती है, क्योंकि सेल जो है वो भी टूट फूट का शिकार होते हैं, उन्हें भी जो है वो एनर्जी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो सेल रिपेयर होते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ digestion. The process of digestion starts with food intake. It involves the following steps. सबसे पहले क्या है, सबसे पहले डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा, जब हम कोई फूड खाएंगे. फूड इनटेक मीन्स हमने कोई फूड, कोई गजा ली. It involves the following steps. Number one, breakdown of complex molecule into simpler one. सबसे पहले क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे सिंपलर फॉर्म में. अपटेक ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, उसके बाद वो जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो किसमें शामिल हो जाएगा, आपके ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लड में. यूटिलाइजेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और सिंथेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय द बॉडी. अब ये मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कर देंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और डिफरेंट बॉडी के मटेरियल्स को के बनाने में यूज होंगे. रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, और जाहिर सी बात है जब डाइजेशन का प्रोसेस होगा, जो काम की चीजें, जो हमारा डाइजेस्टेबल फूड होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेबल फूड है वो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी. The process of digestion in human occurs in systematic manner. The steps involved in digestion is called the digestive system. Let's digestive system in humans are human digestive system. The digestive system in human is made up of a long coil tube that starts from the mouth and ends at the anus. कहाँ से स्टार्ट हो रही है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अच्छी डाइजेशन अच्छी तरह समझ में आ गया. मैंने कहा कि आज का हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट इज डाइजेशन. डाइजेशन मैंने बताया, डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म. अब हम आ जाते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों, क्योंकि मैमल्स, अगर हम बात करें कि सबके डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में हमारे पास सबसे ज्यादा सुपीरियर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो नॉर्मली हम लोग अपने को अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन is made up of a long coiled tube that starts from the mouth and at the anus. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है और एनएस पे जाके खत्म हो रहा है. इट इज 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ये पूरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पूरी एक ट्यूब है जो कि एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है, 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाता है. या तो एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं इसे, या क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. The organ that play their role in the digestive system are the mouth. Organs अगर हम कहें पार्ट क्या है इसके, माउथ, स्टमक, small intestine and large intestine. Other organs that are associated with this system are the liver and pancreas. In mouth, stomach, small intestine और large intestine के अलावा दो मजीद organs हैं जिसे हम liver और pancreas कहते हैं, वो भी इसके साथ attached है. The digestion of food takes place at 3 sites in the digestive tract: mouth, stomach and small intestine. अगर हम बात करें तो टोटल जो मेन किरदार है वो 3 का है, माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. सो लेट्स स्टडी हाउ दिस सिस्टम वर्क, कैसे ये सिस्टम वर्क करता है. ओके, हाउ सिस्टम वर्क. दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. द फर्स्ट वन इज salivary gland, sorry, yes, salivary gland नजर आ रहे हैं, जो कहां पर मौजूद होते हैं, माउथ के अंदर. माउथ में salivary gland मौजूद होते हैं जो कि आपकी जबान के ऊपर मौजूद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सलाइवा, टीथ के साथ. yes, mouth, then salivary gland, a long coiled tube esophagus, then stomach, then small intestine,
and the large intestine. Large intestine, yes, this is the large intestine, and in the middle is small intestine. The main two, pancreas, leaf-like structure, and liver. This is the diagram of human digestive system. This is the organ of human digestive system, alimentary canal or digestive tract. The first part of human digestive system is mouth. The journey of food starts in the mouth. कहाँ से start होता है हमारा digestive system? या अगर हम सफर की बात करें अपने food की, तो सबसे पहले कहाँ से start हो रहा है? मुंह से start हो रहा है, mouth. सबसे पहले हम क्या करते हैं? रोटी का नवाला, चावल का नवाला, ये जो चीज भी हमने खानी होती है, हम किस में डालते हैं? अपने मुंह के अंदर रखते हैं. The food we eat is selected by sense of sight, smell and taste. सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि हम फूड को खाते हैं, उस फूड की हमें स्मेल भी पता चलती है और उस फूड का हमें टेस्ट भी पता चलता है. इफ एनी अनप्लेजेंट मटेरियल लाइक डस्ट और स्टोन इज फाउंड इन द फूड, अगर हमें कोई ऐसा अनप्लेजेंट यानी नापसंदीदा मटेरियल मिल जाता है इस फूड के अंदर, हम उसे क्या करते हैं? ढूंढकर सेपरेट कर देते हैं. इट इज रिजेक्टेड. आफ्टर सिलेक्शन द फूड इज क्रश्ड एंड ग्राउंड बाय द टीथ to increase the surface area of enzymes in the alimentary canal. अब क्या करते हैं? इन टीथ के जरिए, जो कि हमारे मुंह के अंदर टीथ मौजूद होते हैं, इनके जरिए हम क्या करते हैं? अपने फूड को क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं. और फूड की क्रशिंग और ग्राइंडिंग के साथ साथ इनमें एंजाइम्स के जरिए सलाइवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं, जो कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं सलाइवा. और उस सलाइवा के जरिए ये क्या काम करते हैं? उस फूड को जो है वो सॉफ्ट बना देते हैं, ल्यूब्रिकेंट बना देते हैं, स्लिमी बना देते हैं कि वो इजीली हमारे हलक से नीचे उतर जाता है. जब हम नवाला चबाते हैं और चबाने के बाद हम क्या करते हैं? जैसे ही तो देखा, एक बोलस लाइक, एक बॉल लाइक छोटा सा इस वो बन जाता है मुंह के अंदर और हम उसे आराम से इजीली निगल लेते हैं. The ground food is then mixed with the saliva. अभी मैंने ये बात आपको बताई, produced by the salivary gland. Salivary gland के जरिए saliva produce होता है, and saliva is the slimy liquid lubricant. Saliva is the slimy liquid lubricant the ground food and convert it into much so that it can pass through the esophagus efficiently. Esophagus efficiently, sorry. तो कन्वर्ट हो जाता है फूड किस में? बारीक बारीक पीसेस में, और एक बोलस लाइक स्ट्रक्चर बना देता है और जल्दी से एसोफेगस के अंदर उतर जाता है. इट ऑल्सो कंटेन्स एन एंजाइम्स कॉल्ड अमाइलेज. अब इसके साथ जो है वो मजीद एक एंजाइम है जो अमाइलेज कहलाता है, विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू अ सॉल्युबल शुगर कॉल्ड माल्टोज. यहाँ पर क्या होता है कि अमाइलेज एंजाइम सिक्रीशन होती है और वो स्टार्च को ब्रेक कर देता है और उसको सॉल्युबल शुगर, जिसे हम माल्टोज कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है. The tongue also plays a very important role in digestion. जबान जो है वो बहुत important role करती है हमारी digestion में. It pushes food around our mouth for better chewing. The partially digested food is rolled by the tongue into an oval lump called bolus. ये जबान जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है फूड की च्यूइंग में, फूड की ग्राइंडिंग में. और ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अभी क्या ब्रेक डाउन हुआ है? अमाइलेज एंजाइम के जरिए स्टार्च ब्रेक डाउन हुआ है सॉल्युबल शुगर में और एक बोलस लाइक स्ट्रक्चर बन गया. और ये बोलस लाइक स्ट्रक्चर आराम से कहाँ उतर जाता है? हमारे एसोफेगस के अंदर उतर जाता है, जो कि माउथ के बाद शुरू होता है. द बोलस इज देन swallowed by upward and backward movement of the tongue. जबान की अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट के जरिए ये बोलस जो है वो आराम से नीचे उतर जाता है और आराम से च्यूइंग हो जाता है. When the bolus enters the food pipe, backward movement of the tongue block the oral cavity. A soft palate blocks the nasal cavity and a flexible flap called the epiglottis close the windpipe so that food can move into the right pipe. इजीली फूड जो है वो आराम से कहाँ उतर जाता है? ये देखिए, एपिग्लॉटिक पाइप के जरिए आराम से लैरिंक्स में उतर जाता है. ठीक है, लैरिंक्स के जरिए से नीचे चला जाता है आराम से फूड. तो ये जो है वो आपका किसी ऐसी जगह नहीं जाता कि आप लोगों ने अक्सरियत देखा होगा. एक बात मैं शेयर करूं, आप लोगों ने अक्सरियत देखा होगा कि हम क्या करते हैं
कि जैसे ही हमारा फूड निकलने लगता है या हम खाते हैं तो अक्सरियत फंदा लग जाता है। वजह क्या है कि हमारा जो एसोफेगस है उसके पास दो, एक विंड पाइप भी जा रहा है और एक फूड कैनाल जा रही है, एक विंड कैनाल और एक फूड कैनाल। एयर एंटर्स होती है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक लिड दे दी है। जब हम फूड निगल रहे होते हैं वो लिड जो है वो कहाँ चली जाती है, वो लिड चली जाती है हमारे विंड पाइप के ऊपर। और जब हम फूड सांस ले रहे होते हैं तो वो लिड चली जाती है हमारे कहाँ पर, फूड कैनाल के ऊपर। जैसे ही हम खाते हुए कभी बात करते हैं या खाते हुए कोई ऐसी हमें वो लगती है तो अक्सरियत ऐसा होता है कि फूड का कोई पार्टिकल जो है वो विंड पाइप पे जाने लगता है, जिसकी वजह से हमें फंदा लगने लगता है, हम खांसने लगते हैं। वजह क्या है कि वो विंड पाइप में जाने की कोशिश करता है और हम जब खांसते हैं और हम हमें फंदा लगता है तो इसका मतलब होता है कि हमारी सांस की नाली में वो चीज जा रही है, तो हमारे खांसने से वो चीज निकल जाती है। यानी वो लिड जो है वो उस पे कवर होने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, जिसकी वजह से वो विंड पाइप की जगह या हमारी अपनी जो है वो सही तरह से फूड को निगलने के चक्कर में, बात करने के चक्कर में वो विंड पाइप की जगह फूड चला जाता है कहाँ, एसोफेगस, विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें फंदा लग जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज एसोफेगस। The bolus then moves into a stretchy pipe that connects the mouth with the stomach. This pipe is the esophagus. अब ये बोलस जो है वो स्ट्रेची पाइप होता है। आपने देखा होगा अपने गले में, आप लोग सब छू कर देखें अपने गले में, यहाँ पर एक आपको स्ट्रेची सा पाइप नजर आ रहा है। ये पाइप जो है वो एसोफेगस कहलाता है, जो कि स्टमक के साथ अटैच होता है। द मूवमेंट ऑफ बोलस इन द एसोफेगस इज इनवॉलेंट्री व्हेन द बोलस एंटर्स द एसोफेगस. The muscles in the walls of the esophagus contract and relax. This wave like contraction relaxation pushes the bolus down. This movement through which food is moved down into the stomach is called peristalsis. Area of contraction and area of relaxation. ये बोलस वो फूड का बोलस जो हमने खाया था नवाला, जिसको च्यूइंग और ग्राइंडिंग के बाद एक ये वाला स्टाइल बन गया था, स्ट्रक्चर बन गया था, और ये इजीली जब एसोफेगस सेंटर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हुए ये मूवमेंट कहलाती है पेरिस्टाल्सिस, जो हमने अपने कीवर्ड में पढ़ी थी। तो स्ट्रेची वॉल होती है, इस मसल्स की वॉल के जरिए अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट के जरिए आराम से क्या होता है कि ये जो बोलस है ये कहाँ पे चला जाता है, स्टमक में वो चला जाता है, और ये मूवमेंट कहलाती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. फूड मूव्स बैक फ्रॉम द स्टमक टू द माउथ व्हिच लीड्स टू वोमिटिंग. दिस इज कॉल्ड एंटी पेरिस्टाल्सिस. फूड जो वोमिट होती है उसका मतलब होता है कि अब ये मूवमेंट जो है वो स्टमक की तरफ जाने के बजाय आपकी ऊपर की तरफ चली जाती है, तो ये कहलाती है एंटी पेरिस्टाल्सिस. Have you ever felt hunger pangs? Hunger pangs are actually peristalsis contraction which are felt when you have not eaten for a long time. अक्सर ये हम देखा होगा बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है जब हम लोग नहीं खा पाते तो हमें भूख लग रही है. भूख लगने का मकसद होता है कि हमारी जो एसोफेगस की कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत देर तक हो गई है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है. अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे, जो कि है स्टमक. व्हेन अ पेरिस्टाल्टिक वेव रीच द स्टमक. अब कहाँ पे पहुंच गया, वो स्टमक में पहुंच गया. द माउथ ऑफ द स्टमक ओपन्स फॉर द बोलस एंटर इट. द स्टमक इज जे शेप मस्कुलर बैग प्रेजेंट अंडर द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट ऑफ द बॉडी. आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड के पे जो आपका डायफ्राम यानी पेट का हिस्सा है उसके अंदर ये स्टमक जो है वो एडजस्ट होता है. जे शेप्ड, आप देखें जे शेप्ड का ये स्टमक है, एक मस्कुलर बैग है. इट वर्क्स लाइक अ ब्लेंडर. बिल्कुल जैसे एक ब्लेंडर काम करता है ना, ब्लेंड करता है किसी चीजों को, स्टमक भी उसी तरीके से ब्लेंडिंग करता है. इट चर्न्स एंड स्क्वैश द फूड. जब इसके अंदर फूड जाता है तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन की वजह से ये फूड को बिल्कुल पीस देता है, ब्लेंडिंग कर देता है, बिल्कुल ग्राइंड कर देता है, और एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है. वो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है काइम. The walls of the stomach secrete gastric juice. The food in the stomach is mixed with gastric juice. Hydrochloric acid present in gastric juice kills the bacteria present in the food.
It also provides suitable condition for working of the enzymes. These enzymes breaks down protein present in food into its simpler molecules, amino acid. The food in the stomach is then converted into a thick, creamy, semi-solid mass called chyme. The chyme is stored in the stomach for some time and then moved to the small intestine. स्टमक का दो एंड होते हैं, एक होता है पायलोरिक एंड और एक होता है कार्डियक एंड। एक होता है पायलोरिक एंड और तो जनाब पायलोरिक एंड और गैस्ट्रिक एंड की बात हम कर रहे थे कि स्टमक जो है वो ब्लेंडिंग का काम करता है, गैस्ट्रिक जूस इसमें शामिल हो जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस इसमें शामिल हो जाते हैं। पायलोरिक और गैस्ट्रिक एंड की हम बात कर रहे थे, इट चर्न्स एंड स्क्विश the food. Do you know how the stomach does so? So the wall of the stomach secrete gastric juice. स्टमक की जो वॉल्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है जो कि बैक्टीरिया को किल्स करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है और बैक्टीरिया जो फूड के अंदर आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उसको किल कर देता है, मार देता है ताकि कोई बैक्टीरिया आपके जिस्म के अंदर दाखिल ना हो सके और आपको एंजाइम आपके एंजाइम्स को वर्किंग के लिए बहुत अच्छा मीडियम प्रोवाइड हो सके। और ये एंजाइम जो है वो तमाम का तमाम प्रोटीन जो फूड के अंदर मौजूद है उसको कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड के अंदर और एक क्रीमी सेमी सॉलिड मास जिसको हमने कहा था काइम यानी बिल्कुल एक पेस्ट टाइप स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम कहते हैं काइम और ये मूव हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। एक बात और स्टमक की बताऊं कि स्टमक के दो एंड होते हैं, एक होता है कार्डियक एंड और दूसरा कहलाता है पायलोरिक एंड। कार्डियक एंड जो कि हार्ट की तरफ होता है और जो एसोफेगस से फूड अंदर लेता है इसको कहते हैं कार्डियक एंड। और पायलोरिक एंड जो सेकंड एंड है जो कि इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइंट होता है, उसको कहते हैं पायलोरिक एंड। तो दो एंड होते हैं, कार्डियक एंड और एक पायलोरिक एंड। कार्डियक एंड हार्ट के साथ ज्वाइन होता है और पायलोरिक एंड इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन। Small intestine is a long tube consisting of three parts: duodenum, jejunum and ileum. Small intestine के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है duodenum, एक jejunum और एक ileum. The first part of the small intestine that receive the chyme is about 20 to 25 centimeter long and is called duodenum. 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है जो कि कहलाती है डियोडिनम। सही है, हमने कहा तीन पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट इज डियोडिनम 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। व्हेन द काइम एंटर्स एट फर्स्ट डियोडिनम कहाँ से स्टार्ट होता है? कार्डियक एंड, जो स्टमक का कार्डियक एंड था वहां पे डियोडिनम लगा हुआ होता है। ये 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसमें काइम जो है एंटर होता है। When the chyme enters the duodenum, is mixed with secretion from the liver and pancreas and duodenum wall. Liver और pancreas और duodenum wall के साथ कुछ एंजाइम्स लगे होते हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं किसकी? जूसेस की, जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाज रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूोडेनम में आ रहा है और लिवर जो है वो बाइल जूस कन्वर्ट रिलीज करता है जो कि बाइल डक्ट के जरिए आ रहा होता है। सो the pancreas release pancreatic juice through the pancreatic duct to the duodenum and these juice contains enzyme that digest all carbohydrate, fats and protein in the chyme. ये जूस तमाम का तमाम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर, काइम के अंदर जो मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, उन सबको डाइजेस्ट कर देता है। एंड द लीवर रिलीज बाइल थ्रू द बाइल डक्ट टू द डियोडेनम। लीवर जो है वो रिलीज करता है किसको? बाइल को। और ये बाइल जो है बाइल जूस जो है वो क्या करता है, ये कहाँ पे स्टोर होता है? इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर और बाइल ब्रेक करता है फैट्स को प्रेजेंट इन द काइम, जो कि काइम के अंदर फैट प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल के अंदर। The next part of the small intestine after the duodenum is the jejunum. अब duodenum के बाद कौन सी चीज आ रही है? jejunum. It is about 2.5 centimeter long. The remaining part of the intestine is called ileum. ये 2.5 मीटर लॉन्ग होती है और इसका रिमेनिंग पार्ट इंटेस्टाइन का क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है। The food that remains undigested in the duodenum is completely digested in the jejunum. जो कि
डियोडिनम के अंदर कुछ फूड जो है वो रह जाता है अनडाइजेस्टेड, वो जियोजिनम के अंदर और इलियम के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है. आफ्टर डाइजेशन द फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इट एंटर्स द ब्लड. ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द इलियम. तमाम का तमाम एब्जॉर्प्शन जो है फूड की कहाँ हो जाती है, इलियम में. द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फोल्ड्स, मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोव्स कॉल्ड विलाई. देखा कितने फोल्ड हैं, और इन तमाम फोल्ड्स के अंदर क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम कहते हैं विलाई. ये सारे these villi have a thin layer of cells and a thick network of blood vessels. Villi increase the surface area of the intestine for absorption of food. Absorbed food is then passed to the blood. अब ये विलाई जो है वो थिन लेयर्स ऑफ विलाई होते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड को, और ये एब्जॉर्ब फूड कहाँ पर पास हो जाता है, ब्लड के अंदर. ये एब्जॉर्ब फूड देन पास टू द ब्लड, ये एब्जॉर्ब फूड ब्लड के अंदर पास हो जाता है. The blood transport foods to the liver. It is then used to different purpose. The food that remains undigested in the ileum is then moved to the large intestine. तो ये आपने देखा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मैंने आपको बताया था कार्डियक. अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जगा हुआ है. द फर्स्ट पार्ट इज डियोडिनम, द सेकंड इज जियोजिनम एंड द लास्ट इज इलियम. बहुत सारे विलाय आप देखिए, विलाय के अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, सेल्स हैं. इन ब्लड कैपिलरी विलायस के जरिए, इन ब्लड कैपिलरीज के जरिए जितना भी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो सारा का सारा ब्लड के अंदर, ब्लड उसको अपने अंदर सक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मैं लार्ज इंटेस्टाइन बताती हूँ, फिर हम यहीं रुकेंगे, उसके बाद फिर आगे हम मजीद बात करेंगे. तो लार्ज इंटेस्टाइन इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स, cecum, colon and rectum. The material that enters the large intestine contains a large amount of water, salts and undigested food. Water can absorb water and salts are absorbed into the blood, while the undigested food is converted into solid form, is then passed to the rectum. The undigested food is called feces. It contains dead bacteria, fibers of plant, cholesterol and bile pigment. The rectum stores feces temporarily and then removes them from the body through an opening called an anus. Our digestive system can work efficiently only if all parts of the digestive tract are healthy. अब ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, cecum, colon and rectum. ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तमाम का तमाम अनडाइजेस्टेड फूड, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट जो कि इस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर मौजूद होते हैं, वो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है. और उसके बाद जितना वो उसके अंदर जो ब्लड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो फेसिस के जरिए जो है वो आपका एनएस के जरिए, रक्तम में आके एनएस के जरिए बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है. ये भी बहुत जरूरी है. तो अभी मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन किया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इस वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द डाइजेशन एंड व्हाट इज द पार्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. अभी तक के लिए इतना ही. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस. तो अभी तक हमने यही बात की, इसके बाद हम आगे इंशाल्लाह करेंगे. आगे का बात हम बाद में करते हैं. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज.